بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ بسریہ رحمۃ اللہ علیہا کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا۔ دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے کا وقت ہو چکا تھا۔ جب فارغ ہوئی تو آپ نوافل کی نیت باندھ لی۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی۔ اسی حالت میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدہ میں مشغول رہی، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں مہو ہو گئیں۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئیں۔ فراغت پر اسراغ کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئی تو رو رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں ہے۔ رابعہ بسریہ رحمۃ اللہ علیہا بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیت قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط الفاظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر کر لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ایک شخص نے رابعہ بسریہ رحمۃ اللہ علیہا کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہیں، پھر فرمایا، اٹھ چلا جا یہاں سے، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا۔ تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس تذکرہ کو وہی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بسریہ رحمۃ اللہ علیہا سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کبھی بولتے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا ہے؟ رابعہ بسریہ رحمۃ اللہ علیہا نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بسریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ رابعہ بسریہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ رابعہ بسریہ رحمۃ اللہ علیہا نے ساری زندگی تجربت کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی علیہ السلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ رابعہ بسریہ رحمۃ اللہ علیہا نے جواب دیے میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے اس اندیشوں سے نجات دلوا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں، تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا، ہمیں یہ سب کچھ نہیں معلوم، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ رابعہ بسریہ رحمۃ اللہ علیہا نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو
वो शौहर की खिदमत का बोझ कैसे उठा सकती है। एक बार किसी शख्स ने आपकी गोशा नशीनी पर एतराज करते हुए कहा, जरा बाहर निकल कर देखिए कि कैसी बहार आई हुई है। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने बेसाख्ता जवाब दिया, मेरा काम साने को देखना है, इसकी सनात को नहीं। एक मर्तबा राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने रात दिन मुतवासर पानी से रोजा रखा और पानी से ही इफ्तार किया। घर में खाने के लिए रोटी का एक लुकमा भी ना था। जब इफ्तार का वक्त करीब हुआ तो आप पर भूख का गलबा हुआ। नफ्स ने आपसे फरियाद की, ए राबिया, आखिर तू कब तक मुझे भूखा रखेगी। अभी आपके दिल में ये ख्याल ही गुजरा था कि किसी शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी, आप बाहर तशरीफ लाए तो एक न्याज़मंद खाना लिए खड़ा था। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने खाना कबूल फरमा लिया और नफ्स से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह ताला ने खाने का इंतजाम कर दिया है, अभी तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये कि आपने खाना रख दिया और चिराग जलाने के लिए अंदर चली गई। वापस आई तो क्या देखा कि एक बिल्ली ने खाने के बर्तन उलट दिए हैं और जमीन पर गिरा हुआ खाना खा रही है। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा बिल्ली को देखकर मुस्कुराई और फरमाया, शायद ये खाना तेरे लिए भेजा गया हो, इत्मीनान से खा लो। इफ्तार का वक्त करीब हो चुका था। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने चाहा कि पानी से ही रोजा इफ्तार कर ले। इतने में तेज हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा अंधेरे में आगे बढ़ी। इत्तेफाक से पानी का बर्तन गिरा और टूट गया। सारा पानी जमीन पर बह गया। अजीब सूरत हाल थी। बेख्तियार आपकी जुबान से ये अल्फाज निकले, इलाही ये क्या राज है, क्या माजरा है, मैं गुनहगार नहीं जानती कि तेरी रजा क्या है। जवाब में हातिब गैबी ने कहा, ऐ मेरी मोहब्बत का धम बनने वाली, अगर तू चाहती है कि तेरे लिए दुनिया की नेमतें वक्त कर दूं तो फिर तू मैं तेरे दिल से अपना गम वापस ले लूंगा, क्योंकि मेरा गम और दुनिया की नेमतें एक साथ नहीं रह सकती हैं। तो राबिया बिसरिया, एक तेरी मुराद है और एक मेरी मुराद है, तो बता दोनों मुरादें एक जगह कैसी रह सकती हैं। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने जब ये आवाज सुनी तो अपनी रजा को हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रजा में गुम कर दिया और गुलिस्तान खंजर तस्लीम में शामिल हो गई। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा इश्क इलाही में इस कदर मुस्तगरिक रहती कि खुशी और गम अपनी हैसियत खो बैठते थे। आप खौफ और तमा से बेनियाज होकर अल्लाह ताला की इबादत करने को पसंद करती थी। एक बार आप पर जज्ब की कैफियत तारी हुई तो अहले बसरा ने देखा कि आप एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लिए चली जा रही हैं। लोगों ने पूछा, ये क्या है और आप कहाँ जा रही हैं। तो राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, मैं इस पानी से दोजख को बुझाना चाहती हूँ और आग से जन्नत को जलाना चाहती हूँ, ताकि लोग जन्नत व जहन्नम के लालच और खौफ से बिलातर होकर अल्लाह ताला की इबादत करें। यह राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के जज्ब व मस्ती की बात है, वरना आम मोमिनीन को कुरान मजीद में खौफ व तमा दोनों हालतों में अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया है। चुनांचा आपने एक दफा मुनाजात में कहा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैं तेरी इबादत दोजख के खौफ से करती हूँ तो मुझे दोजख में ही डाल देना, और अगर मेरी रियाजत हुसूल जन्नत के लिए है तो मुझ पर जन्नत हराम कर देना, और अगर मेरी इबादत फकत तेरी रजा के लिए है तो तू मुझे अपने दीदार से हरगिज महरूम न रखना। एक मर्तबा आपने तहज्जुद के वक्त मुनाजात करते हुए फरियाद की, ऐ अल्लाह, रात आ गई, दिन चला गया, सितारे चमकने लगे, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, एक तेरा दरवाजा खुला है, मैं तुझसे तुझे को मांगती हूँ। एक मर्तबा आपने मुनाजात में ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, जो आसमान को जमीन पर गिरने से रोके हुए है, शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दिए। एक मर्तबा एक नौजवान आपकी मजलिस में हाजिर हुआ। उसने सर पर पट्टी बांध रखी थी। आपने पूछा तो उसने बताया कि सर में दर्द है और पहली मर्तबा ऐसे हुआ है।
आपने उम्र पूछी तो उसने कहा 30 साल। आपने फरमाया कि 30 साल तेरे सर में दर्द ना हुआ, तूने शुगर की पट्टी न तो कभी न बांधी, पहली मर्तबा दर्द हुआ तो शिकवे की पट्टी फौरन बांध ली। वो नौजवान ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने अपने अंदर सब्र पैदा करने की नियत कर ली। एक मर्तबा कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत बख्शी है, हमेशा मर्द ही को नबूवत व रिसालत का मनसब अता हुआ है, किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया। राबिया बिसरिया ने कहा, बेशक अल्लाह ताला का यही निजाम है, मगर एक बात गौर से सुन लो कि मर्दों ने ही खुदा होने का दावा किया है, किसी औरत ने आज तक खुदाई का दावा नहीं किया। एक मर्तबा आप अपने इबादत खाने में सोई हुई थी कि एक चोर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि फकत एक चादर के सिवा कुछ मौजूद नहीं। उसने चादर उठाई और जाने लगा। अचानक उसकी बीनाई जायल हो गई और उसे दरवाजा नजर आना बंद हो गया। वो घबरा गया, चादर उसके हाथ से नीचे गिर गई। उसे दरवाजा दोबारा नजर आने लगा। उसने सोचा यहाँ से निकल जाऊं, कहीं बीनाई हमेशा के लिए जायल ना हो जाए। जब दरवाजे से निकला तो एक आवाज आई, अगर एक दोस्त सोया हुआ है तो दूसरा दोस्त जागता है। अल्लाह ताला की हैबत का इसके दिल पर ऐसा असर हुआ, उसने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली। एक मर्तबा राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। खाने का वक्त करीब था, चुनांचा राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने खादिम को बुलाकर पूछा, मेहमानों को पेश करने के लिए घर में कुछ मौजूद है? उसने कहा, सिर्फ एक रोटी मौजूद है। आपने फरमाया, एक रोटी 5 मेहमानों के लिए नाकाफी है। इतने में एक सवाली ने दरवाजे पर सदा लगाई। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने खादमा से कहा कि वो रोटी जरूरतमंद को दे दो। खादमा ने हुक्म की तामील की। कुछ देर बाद खादमा ने बताया कि एक शख्स खाना लेकर आया है। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? उसने कहा, 2 रोटियां हैं। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा कि उसे वापस भेज दो, वो खाना हमारा नहीं है। खादमा ने रोटियां वापस कर दी। थोड़ी देर बाद खादिम ने इत्तला दी कि एक और शख्स खाना लाया है। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? उसने कहा, 5। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फिर वही जवाब दिया कि खाना लाने वालों को वापस भेज दो, वो खाना हमारा नहीं है। खादमा ने उसे भी भेज दिया। थोड़ी देर बाद खादमा ने बताया कि एक शख्स खाना और लाया है और उसमें 11 रोटियां हैं। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा कि हाँ, कबूल कर लो, ये हमारा रिस्क है, अल्लाह ताला ने भेजा है। मेहमान हजरात ये सब कुछ देखकर मुजस्मा हैरत बन गए। इतने में खादमा ने दस्तरखान पर खाना लगा दिया। जब सब लोग खाना खा चुके तो मेहमानों ने सवाल पूछा कि आपने 2 मर्तबा खाना वापस भेज दिया, तीसरी मर्तबा कबूल कर लिया, इसमें क्या राज है? राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि दुनिया में एक के बदले में 10 और आखिरत में 70 दूंगा। मैंने एक रोटी खुलूस नियत के साथ साहिल को दे दी। मुझे पक्का यकीन था कि एक के बदले में 10 मिलेगी। पहला शख्स 2 रोटियां लाया, दूसरा 5 लाया। मैं समझ गई ये हमारा रिस्क नहीं है। तीसरा 11 रोटियां लाया, एक के बदले 10 और 11 हुई रोटी जो साहिल को दे दी मैंने। अल्लाह ताला ने वो भी वापस कर दी। अल्लाह ताला की शान रज़्ज़ाकी देखिए कि अपने वादे को पूरा कर दिखाया। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा की शान तो कल को देखकर तमाम दरवेश हैरान हो गए। राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा की मौत का वाकया भी बड़ा अजीब है। वफात से कुछ देर पहले लोग इबादत के लिए हाजिर और खिदमत हुए। राबिया बिसरिया अलैहा ने कहा, फरिश्तों के लिए रास्ता छोड़ दो। लोग बाहर चले गए। कुछ देर अंदर गुफ्तगू आवाज आती रही। जब खामोशी छा गई तो लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा कि राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। जिस तरह बादे नसीम का कोई झोंका तेजी से गुजर जाता है,